My dear students, good morning. Once again, I have come with the topic etiquettes. Okay, last time we have discussed etiquettes and manners, and today I want to brush up a few more points. It's gonna help you in the long run. Once we learn, once we know what are the good etiquettes and the bad, it really make a big difference in our life. Okay, so let's not waste time and move ahead. So number one point: do not call someone more than twice continuously. If they don't pick up your call, presume they have something important to attend to. In this point, it is related to the phone calls, cell phones, telephones. Okay, sometimes we need to pass one message. Okay, and suppose let me cite an example. My father is working in one department, say police department example. If I need to send a message to him that by evening when he comes home, please bring me a set of pencils, okay, or set of books or notebooks. So straight away I'm calling him, or by my mother's for mobile I'm calling him. In case if he does not pick it up at the same time, okay, please do not irritate, do not make it a habit, no calling, no again calling, redialing, okay, unless and until it is very very important. We can say SOS messages, SOS calls, which are very essential to pass across. So on small things we should not disturb them much, or we can simply send a message, please when you free call back, okay. So it is related to that only. It says same, we should call someone more, not more than twice. Okay, आप assume कर लीजिए he is doing some important job which he cannot break off. Number two, return money that you have borrowed even before the person remembers asking for it from you. It shows your integrity and character. Same goes with the umbrellas, pens, and lunch boxes. Now, the point is, if I'm citing an example of a student at present in our hostel, in our campus, so normally we don't have anything related to the borrowing money, okay? But in case sometimes, example, if I have no money and I need to buy something important related to the education, I normally can borrow money from warden sir, any teacher, principal, vice principal, anyone. But if not that much, we can manage it with our friends also with their good consent. But we have to return them before. Like if I'm telling them, no, next Sunday my parents are coming, I will return your money. So it should be a basic principle of a human being. It should be returned within a time frame without asking it many times. You should return the money. Same goes with pencils. If I have borrowed any pencil or lunchbox, any umbrella from someone, so we should return it in time. We should not let him repeatedly asking about the things which we have borrowed. Okay. Number three, never order the expensive dish on the menu when someone is giving you lunch or dinner. If possible, ask them to order their choice of food for you. Well, it is also a good point. Like example मैं आपको बताता हूँ. Why I want to give example all the time, because it clarifies, understand. So मान लीजिए you have one friend in a class whose birthday is today. Okay, आज मैंने जब उसको wish किया, so I told him normally in our culture, in every culture, we say let's go for a small treat. Let's have a cup of coffee near to tuck shop. Let's share one chocolate or toffee, whatever. So if he gives you a treat, you should let him to decide what you want. You should, or else you should order that thing only which is in the permissible reach, which is as per the budget. Means अगर pocket money 300 है या 500 है per month, you should not ask the thing which is crossing more than that. आपको ये भी समझना है कि इसको एक वीक पूरा चलाना है, इसको टाइम फ्रेम निकालना है इस पैसे से. So you should never
ever ask such things which is not within the reach. Similarly, it goes to the civil life. Means I mean to say, it goes to the family, home life. When you go to your home or when you are on vacations, आपको घर में किसी का बर्थडे है या कोई एग्ज़ाम पास किया उसने, क्रैक किया उसने, वो ट्रीट देना चाहता है. If he is not earning, you must not expect some big things from him. You should always keep yourself within the limits. कि नहीं, आज मेरी इसका बारी है, कल मेरा भी बारी हो सकता है. ठीक है, like that. Don't ask awkward questions like, oh, so you are not married yet? Don't you have kids? Or why don't you buy a house? Or why don't you buy a car? For God's sake, it is not your problem. Well, again and again, it is a good point to discuss, because normally in our present culture, we always if we speak normal, it becomes like a taunt. So if somebody is little bit heavy by weight, we don't hesitate to ask him, no, yaar, you should try something, or you are looking good, because if he is fat, he has some issues, metabolic issues. Doesn't mean that his eating is only the issue. He's eating over and over. But sometimes health issues are not there. Health issues are there. Psychological issues are there. You should never ask such things. So this question is not for, basically means that situation is not yet come. आप किसी को नहीं बोल सकते आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक. मे बी देर आर सम फाइनेंशियल इशूज़, मेरा हेल्थ इशूज़ आर देयर. यू शुड नेवर आस्क दीज थिंग्स. ठीक है, यू शुड नॉर्मली यू शुड लेट हिम टू स्पीक आउट. आपको उसको मौका देना चाहिए बोलने का, अगर वो खुद बोलना चाहता है. ठीक है, या मान लो किसी के बच्चे नहीं हैं. ठीक है, क्योंकि नॉर्मली गॉड गिफ्ट होता है ये, शादी के बाद बच्चे सिर्फ गॉड गिफ्ट. ओके, तो मान लीजिए कभी किसी का हेल्थ इशू रहता है, तो यू शुड नॉट एम्बैरेस देम कि यार बच्चे नहीं है अभी तक, दिस इज़ दैट थिंग, ब्ला ब्ला ब्ला. यार आपके पास पुरानी गाड़ी है, आपने नई गाड़ी क्यों नहीं लाई है, ये है. ठीक है, सो दिस इज़ पर्सनल थिंग्स. हमें इंटरव्यू नहीं करना चाहिए इनको, अनलेस एंड अनटिल ही स्पीक्स और शी स्पीक्स हरसेल्फ अबाउट इट. Number 5. Always open the door for the person coming behind you. It does not matter if it is a guy or a girl, senior or junior. You don't grow small by treating someone well in the public. So it is also a good point. अगर हम अपने क्लास में जाते हैं, the first man opens the door. अगर वहाँ पे लगा है डोर स्टॉपर्स लगे हैं या डोर रिटर्निंग जो ब्लॉक्स लगे रहते हैं जिससे डोर वापस आता है, मतलब इट्स अ गुड हैबिट. यू शुड कीप इट लिटिल बिट, रोक के रखो, बाकी बच्चों को भी आने दो, या अपने दोस्तों को आने दो, या अपना सीनियर कोई आता है उसको पास होने दो. उस चीज़ से आप किसी के नौकर नहीं बन जाते हो, छोटे नहीं बन जाते हो. आपका एक एटिकेट है आदमी का कि नहीं यार ये मतलब रिस्पेक्ट करता है इस चीज़ का, कितनी अच्छी आदत है इसकी. ये इट इज़ अप टू यू ओनली. मीन्स आपका ही उसमें बेनिफिट है, आपका ही नाम उसमें आएगा, आपको ही उसका ये मिलेगा, मतलब रिजल्ट्स मिलेंगे आपको कि नहीं. देखो मान लीजिए जासिम है, जासिम की अच्छी आदतें हैं, ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड, मतलब अपने बड़ों का आदर करता है, छोटों का आदर करता है. ठीक है, स्पेशली ये मैटर्स करते हैं जब हम पब्लिक लाइफ में आते हैं, तो दीज थिंग्स रियली मैटर्स. इफ़ यू टेक ए टैक्सी विद अ फ्रेंड और ही पेज नाउ, ट्राई पेइंग नेक्स्ट टाइम. एग्ज्यूम करता हूँ मैं, मान लीजिए आप आउटपास पे आए हैं. ठीक है, सो नॉर्मली वी अलो पेरेंट्स टू टेक यू अलोंग, बट कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है तो यू हैव टू वी गेट द कंसेंट फ्रॉम पेरेंट्स. नो, दे अलो, दे हैव 1 hour वर्क और 2 hour वर्क, सम कज़न हैज़ कम. तो मान लीजिए अगर आप क्लब करते हैं, 2-3 दोस्त क्लब कर लेते हैं, उस टाइम आपको घर जाना है या आपको शॉपिंग करने जाना है. So if today I am paying, you should keep it in mind that no, next time when we have any chance, I must pay back. ठीक है, ये हमेशा ज़िंदगी जो होता है, एक हाथ से दे एक हाथ से ले. ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार मैं ही मतलब देता रहूँगा, या बार बार आपसे ही मैं मतलब यूटिलाइज़ करूँगा, आपको ही रिसोर्स यूटिलाइज़ करूँगा. नो, यू शुड, दिस इज़ अ गुड हैबिट ऑफ एक्चुअली ना, बोलते ना एटिकेट्स में ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे दोस्ती भी अच्छी रहती है, रिलेशंस भी अच्छे रहते हैं. ठीक है, क्योंकि पुरानी कहावत है, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना. सो इट डजंट मीन दैट इन फ्रेंड्स इट इज़ कॉमन, इट इज़ नॉट बिग इशू कि आज मैं क्यों दूंगा आपके लिए. बट यू हैव टू मेक इट अ हैबिट. नो, इफ़ टुडे ही हैज़ सेक्रीफाइस्ड, नेक्स्ट टाइम इट्स माई टर्न टू पे बैक.
Number 7, respect different shades of opinions. Remember what 6 to you will appear 9 to someone facing you. Besides, second opinion is good for an alternative. मान लीजिए मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ। मेरे एक नी में लिगामेंट टियर है। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मेरा एक इलाज कर दीजिए। उसने बोला कि नहीं, इसका एक इलाज है। राइट, ऑपरेशन इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट मैं अपनी जांच के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मेरे को चाहिए कि मैं एक और ओपिनियन ले लूँ। हो सकता है कि बिना ऑपरेशन किए हुए इसमें कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जो एक नई टेक्नोलॉजी है, जो मतलब नई मार्केट में एक अब कुछ ऐसा टूल आया है जिससे मतलब हमें कोई परेशानी भी ना हो, है ना। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। जैसे एक हार्ट की सर्जरी होती है, एक होती है ओपन हार्ट सर्जरी, और दूसरी होती है लेप्रोस मीन्स वो करते हैं एक डिवाइस से करते हैं, कैमरा से यूज़ करते हैं। उसमें इतना बड़ा सीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। हर मतलब एक डॉक्टर टर्म से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब ताकि नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में हम समझ पाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको एग्ज़ाम्स हैं, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप एक टीचर को कंसल्ट करते हैं, फिर भी कोई डाउट आता है आपको, आप फिर भी उसको मतलब रिव्यू लेके सकते हैं दूसरे टीचर के पास भी। मुझे इस चीज़ में ये डाउट आता है, हो सकता है मुझे एक्सप्लेन अच्छा ना मतलब समझ में नहीं आया, आप भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो सेकंड ओपिनियन इज़ ऑलवेज गुड। और हमें एक आदमी की एक सोच होती है, दूसरे आदमी की दूसरी सोच होती है, सब हमेशा से एक ही जगह पे जाते हैं, बट अपना अपना यूटिलाइजेशन होता है, कैसे इसका प्रयोग करें दिमाग का, मतलब कैसे सोर्सेज का। तो हमेशा उन चीज़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर मैं रोटी और चने लेता हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, तो आप कोई लेता है, मैंने साउथ में देखा है वहाँ पे राइस खाते हैं, तो डज नॉट मीन दैट इट्स बैड। वो कोई मेरे कल्चर से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। वी मस्ट रेस्पेक्ट इट। जो मेरे लिए सही है हो सकता है उसके लिए गलत हो, या उसके लिए जो गलत है मेरे लिए सही है। या एक ही नज़रिए से हम अगर देखेंगे, हो सकता है वो थोड़ा सा उस नज़रिए को डिफरेंट देखता हो, उसका जो परसेप्शन है डिफरेंट हो, मेरा सही हो या उसका सही हो। आई मीन से हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट हार्मिंग यू। वो हमारे कैंपस को ख़राब ना हो या उसका माहौल ख़राब ना हो उससे, ठीक है। रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है दूसरे की सोच का। नंबर 8, never interrupt people talking, allow them to pour it out as they say, hear them all and filter them all। जब भी दो व्यक्ति बात करते हैं या अगर फैमिली बात करती होती है घर में, हमेशा उनको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए until unless it has some important reason to interrupt। तो हमें उनको बोलने देने चाहिए। क्या होता है उसमें, या टीचर कभी लेक्चर देता है, वो बोलता है कि आप सुनिए, आपको जो भी क्वेश्चन है लास्ट में आप बताइए। उससे क्या है, अगर मान लीजिए एक बच्चे का थोड़ा सा डाउट्स क्लियर ना हो, लेकिन अगर वो बीच बीच में इंटरप्ट करता रहेगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके बाद नॉर्मली अपने स्कूल में एक टाइम रहता है लेक्चर ख़त्म होने के बाद कि जिसका डाउट है प्लीज़ कम अप एंड आस्क फॉर योर डाउट्स। इवन जब आप आजकल वीडियोज़ जो भी बनाते हैं उसमें भी हर एक लिखता है कि किसी को कोई डाउट हो प्लीज़ आस्क इट, ठीक है। डाउट अंदर नहीं पालना है। सो लेट्स मूव ऑन। नंबर 9, इफ़ यू टीज समवन and they don't seem to enjoy it, stop it and never do it again. It encourages one to open more and it shows how appreciative you are। अगर मान लीजिए मेरा नाम है फैज़ान और मुझे घर में गोलू बुलाते हैं, ठीक है। निक नेम है मेरा, जो पेट नेम जो आजकल घरों में रहता है, अभी भी हमेशा से रहता है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप भी उसको गोलू बुलाते हैं और वो बच्चा जो है उसको इरिटेशन हो जाती है आपके बुलाने से, और उसको अच्छा लगता है, उसके जब मम्मी पापा उसको गोलू बुलाते हैं ही एन्जॉयज़ इट। लेकिन जब उसको कोई और गोलू बुलाता है तो उसको इरिटेशन होती है, वो रिएक्ट नहीं करता, मतलब एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड इट कि नहीं यार, इसको शायद ये मेरा बोलना गोलू बोलना पसंद नहीं है, मुझे ये दोबारा नहीं रिपीट करना है इसको, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इट जो है आपकी महानता है उसमें, ठीक है।
वो जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो उससे भी ज़्यादा आपको रेस्पेक्ट देगा। क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड्स के सामने उनको मतलब दूसरे फ्रेंड्स को बोलेंगे कि नहीं यार फैज़ान को हमारा गोलू बुलाना पसंद नहीं है, प्लीज़ हमें ये नहीं बोलना चाहिए। जब ये फ्रेंड्स आपके लाइफ मतलब फॉलो करेंगे इस चीज़ को, तो यही गोलू, यही फैज़ान जो है आपको अच्छा रिस्पेक्ट देगा और आपको बहुत अच्छा मानेगा वो आपके बारे में। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। नंबर 10, से थैंक यू व्हेन समवन इज़ हेल्पिंग यू। लास्ट टाइम मैंने यही बताया था कि जब भी आपकी कोई हेल्प करता है या कोई भी मतलब डाउट्स क्लियर करता है, यू शुड से थैंक यू। उससे आप छोटे नहीं होते हैं, बल्कि आपकी इज्जत ही बढ़ जाती है, आपकी रेपुटेशन ही बढ़ जाती है कि नहीं देखो कि अच्छा बच्चा है, अच्छे ब्रिंगिंग अप हो वही इसका। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। नंबर 11, प्रेज पब्लिकली, क्रिटिसाइज प्राइवेटली। मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मुझे मतलब एक मैच्योर्ड इंसान किसको बोलते हैं और वो कैसे ये रिएक्ट करता है। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलती आपसे पकड़ी है, एक स्टूडेंट से एक वार्डन ने कोई गलती पकड़ी है, तो अगर मैं उसका बढ़ावा करूँगा, ठीक है, तो उससे क्या है, हो सकता है मतलब कुछ चीज़ें बिगड़ जाएँ उससे। ठीक है, अगर मैं अपने आप को वहाँ पे मतलब पब्लिकली प्रेज़ करूँगा, प्रेज़ तो नहीं कर सकता हूँ गलतियों पे, बट मान लीजिए अगर मैंने वहाँ पे चुप्पी भरी और जब आपको मैंने पर्सनली बुलाया, आपको फिर मैंने उस चीज़ के बारे में समझाया कि भाई ये गलत है, ये ऐसे नहीं चलेगा मेरे सामने, या ऐसा नहीं चलेगा इस लाइफ में, इस कैंपस में, तो उसको बोलते हैं पब्लिकली प्रेज़ करना और प्राइवेटली क्रिटिसाइज़ करना। इससे और भी एक क्लियर एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। मान लीजिए कुछ ऐसा मैंने बोला मैनेजमेंट में, या कुछ ऐसा मतलब अपने लिए बता रहा हूँ कि जो मैंने मैनेजमेंट के मतलब सही नहीं है वर्किंग के लिए, तो जो मेरा जो बॉस है वो मुझे पब्लिकली कुछ बोलेगा नहीं उस टाइम, और पर्सनल बुला के मुझे बोलेगा भैया ना ये इसका मतलब क्रिटिसाइज़ करना, उसका मतलब उसके बारे में आपको आगाह करना, बताना उसके बारे में, भाई सही नहीं था, ये गलत था, ये तरीका नहीं है। ठीक है, सो मुझे उस चीज़ में ये भी एक क्वालिटी है, एटिकेट है, पब्लिकली किसी को इंसल्ट नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं गलत किया है उसने, आपको उसको पर्सनली मोबाइल पे, पर्सनली मीटिंग में, पर्सनली आपको उसको बुलाना है और आपको उसको उसकी गलती का एहसास दिलाना है। उससे क्या है, एक डेकोरम बना रहता है। ठीक है, एक वर्क कल्चर जो बोलते हैं वो एक बना रहता है कि नहीं, माहौल जो है बना रहता है। Let's move on. Number 12. There are almost never a reason to comment on someone's weight. Just, just say you look fantastic. If they want to talk about losing weight, they will. बस ये तो मतलब एक नॉर्मल सा पॉइंट, मतलब नॉर्मली हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में। अगर कोई स्टूडेंट कोई, या कोई मैं हूँ, या हमारे घर में फैमिली में या नेबरहुड में कोई भी एकदम थोड़ा सा मतलब मोटा है या वेट ज़्यादा है, मैंने बोला कि वेट होने के बहुत सारे कारण हैं, डज नॉट मीन दैट ही इज़ ईटिंग ओवर एंड ओवर या ओवर ईटिंग करता है, नहीं। उसके हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, हेरिडिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। सो उस विषय में हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पर्सनल है, लेकिन अगर एक एम्पैथी सिंपैथी के हिसाब से हम देखेंगे तो हम सोचते हैं कि नहीं है, शायद इसको पता ना हो, अगर हम इसको ये बताएंगे तो शायद हेल्पफुल हो सकता है इसके लिए। तो सिमिलरली हमें उनको हौसला अफजाई करनी चाहिए कि नहीं यार बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि उसको भी समझ में आ जाएगा कि नहीं यार मेरी वेट मतलब हो सकता है ये भी है कि वो अपने वेट को दिमाग में रख के कोशिश करे कि मैं उसके लिए कुछ करूं, जब तक कि वो खुद नहीं बोलता है कि क्या कारण है मेरी वेट बढ़ने का, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। वो ये सब एक एटिकेट्स गुड एटिकेट्स में आता है कि पर्सनल चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए। Number 13. When someone shows you a photo on their phone, don't swipe left or right. You never know what's next. Very good point. Again, पर्सनल चीज़ों पे आता है। मान लीजिए मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया, ठीक है, एक सडनली मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको स्लाइड दिखाऊं किसी चीज़ के बारे में। मैं आपको बोलता हूँ आइए बच्चे इधर गो, मतलब एकदम राउंड सर्कल में आइए, दिस इज़ सी, देखिए ये जो पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था ये ऐसा है।
अगर इस बीच में कोई बच्चा मुझसे बोलता है सर मुझे दिखाई मतलब मुझे कम दूर से कुछ कम दिखाई दे रहा है, मैं अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के देखना चाहता हूँ खुद, देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब कुछ खास है कि नहीं देंगे। बट प्लीज़ उसको ये दिमाग में रखना चाहिए कि मोबाइल दीज थिंग्स आर वेरी पर्सनल थिंग्स, ठीक है। उनको ऐसा नहीं चलो मैं देखता हूँ इसमें क्या है और लेफ़्ट राइट जाके अभी क्या है गैलरी में क्या है। या मान लीजिए आप मुझसे या मैं किसी से मोबाइल मांगता हूँ कॉल करने के लिए, अगर उन्होंने दे दिया, जैसे मैं आपको देता हूँ मोबाइल कॉल करने के लिए फैमिली को, हमारे एक अपना रहता भी है अपना कैंपस में स्कूल हॉस्टल के मोबाइल, लेकिन यू शुड यूटिलाइज दैट ओनली, जो आपने पूछा उतना ही करना है। अननेसेसरली ट्रबल नहीं करना है किसी को। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मटेरियल हो जो आपको शेयर ना कर सके, है ना। कभी कभी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं या आंसर पेपर्स रहते हैं जो हमने आपके लिए बनाए होते हैं, तो विच शुड बी कॉन्फिडेंशियल, मतलब हमें अपना रिव्यू देखने के लिए रखना पड़ेगा और ज़रूरी नहीं कि आपको भी वो दिखाएं वो क्वेश्चन पेपर क्या आ रहा है एग्ज़ाम में। तो ऐसा माहौल नहीं बनाना है। Number 14. If a colleague tells you that have a doctor's appointment, don't ask what is it for. Just say I hope you are okay. Don't put them in the uncomfortable position of having to tell you their personal illness. If they want you to know, they'll do so without your inquisitiveness. इसका ये है मतलब नॉर्मली एक शरीर जो होता है आदमी का, बोलते हैं ना, ये बहुत सारे अमलगमेशन है, बहुत सारे ऑर्गन्स के, मतलब बहुत सारी चीज़ों का ये बना हुआ है। तो मान लीजिए किसी को कोई तबीयत ख़राब है, समबड़ी है किडनी इशू, समबड़ी है प्राइवेट पार्ट्स इशूज़, ठीक है। तो हमें एक बार अगर वो बोलता है कि नो आई हैव टू गो टू डॉक्टर फॉर सम पर्सनल रीज़न, इफ़ दे इंटेंड टू आस्क यू द परमिशन, अगर आपसे वो परमिशन मांगने के लिए मजबूर हैं तो आपसे परमिशन लेते हैं, तो यू शुड नॉट योर सेल्फ आस्क हाँ भैया किसको दिखाना है, किधर दिखाना है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। नो, अनटिल अनलेस वो खुद नहीं बताना चाहता, मतलब जब वो खुद बताएगा या बताएगी कि नहीं सर मेरे को डेंटल के पास जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, हो ना। आज के मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो नॉर्मली हम पब्लिकली डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो वी शुड रेस्पेक्ट इट। हमें अननेसेसरली उनसे नहीं पूछना चाहिए किधर दर्द है, ठीक है। तो नॉर्मली ये मतलब मेल फीमेल्स में ज़्यादा इशू हो जाता है, बट बॉयज़ में तो कभी कम चांसेस है। लेकिन हमें ये एक एटिकेट पालना डेवलप करना चाहिए कि हमें नॉर्मली किसी को कोई पर्सनल चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए जब तक कि वो खुद बताएं। फाइनली वही है। Number 15. Treat the cleaner with the same respect as the CEO. Nobody is impressed at how rude you can treat someone below you, but people will notice if you treat them with respect. I have been always requesting everyone that in our hostel, in our school, we have got hygiene staff, we have housekeeping staff है, या we have got mess staff, cook staff ना, जो भी मतलब हमें हेल्प करते हैं, सर्व करते हैं। तो हमें उनको हमेशा अच्छे से ट्रीट करना है, जैसे हम अपने वार्डन सर को ट्रीट करते हैं, जैसे हम एक टीचर को ट्रीट करते हैं, वैसे हमें उनको भी ट्रीट करना है, चाहे वो ड्राइवर हो, क्लीनर हो, जनरेटर रूम असिस्टेंट हो, क्योंकि फाइनली एक टीम वर्क है। हम टीम वर्क में ही काम करते हैं। जितनी मेरी इंपॉर्टेंस है, जितनी आपकी इंपॉर्टेंस है, उतनी उसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए तो वहाँ पे है वो। अगर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती तो वहाँ पे नहीं होता वो। तो हमें हमेशा अपने कोलीग्स का, अपने क्लासमेट्स का, अपने सीनियर्स का, जूनियर्स का हमेशा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। स्पेशली जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हैं, जिन पे हमारी नींव दड़ी रहती है, वो यही रहती है। बोलते ना, हमारा जो किचन स्टाफ है, हाइजीन स्टाफ है, इन पे ही हमारा अगर ये नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमारा खाने को मिलेगा नहीं, और जो हमारा जिससे हमारा लाइफ हाइजीनिक रहता है वो साफ़ होगा नहीं, तो हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो इनको हमेशा अच्छे से ट्रीट करना है। Number 16. If a person is speaking directly to you, staring at your phone is rude. बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। वेरी गुड एटिकेट बोलते हैं इसको। जिस आदमी में ये एटिकेट्स ना हो, तो मैं समझता हूँ कि मतलब उसको रियली में जाना चाहिए और सीखना चाहिए और पढ़ना चाहिए इस चीज़ के बारे में। अगर आपकी नज़रों में कोई ऐसा है जिसकी ये हैबिट है, प्लीज़ आप उसको अवेयर कीजिए कि भैया
या सर या अंकल या डैडी कोई भी हो या कोई आपका फ्रेंड हो, दिस इज़ नॉट ए गुड हैबिट, दिस इज़ नॉट ए गुड एटिकेट, आप इसको चेंज कर दीजिए। वो ये है कि जब भी हम किसी से पूछते हैं या आपसे कोई पूछेगा या आप किसी से पूछोगे कोई चीज़, until and unless he is doing some important work, मतलब ऐसा कोई चीज़ ना हो कि जो आपका इंटरप्शन मतलब उसको करना मजबूर है, तो वो ये सब नहीं होना चाहिए कि वो अपना फ़ोन पे टस और मस है एंड वी आर कम्युनिकेटिंग। नो, दैट्स नॉट गुड। फैमिली में भी एक रूल बना के रखिए, व्हेन एवर योर फादर, योर पेरेंट्स, एनी वन इज़ टॉकिंग टू यू, यू मस्ट अवॉइड फ़ोन until and unless इट इज़ अनअवॉइडेबल। अगर हमें मतलब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट करना है तो सडनली, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत ऐसी भी होती है कि आप फ़ोन पे कुछ रिसर्च करते रहते हैं, मतलब मान लीजिए किसी टॉपिक के बारे में, सडनली वो अपना अपना उनको टांग डालने की आदत होती है। जो टॉपिक हमें उनको पूछना नहीं चाहिए वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो नॉट ऑल द टाइम बट इट इज़ अ गुड एडिकेट। अगर आपको कोई भी वो पता चलता है बॉडी लैंग्वेज से आपको कि वेदर उसका क्या मतलब पूछने का क्या मतलब रवैया है, क्या पूछने का उसका पर्पज़ क्या है, इफ़ इट इज़ फॉर कंस्ट्रक्टिव और इट्स फॉर लाइक डिस्ट्रक्टिव, है ना। आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब अभी स्कूल्स के, सडनली कोई आता है आपको और बोलते हैं चलो लूडो खेलते हैं, नो, डोंट बी हीड टू इट। बट नॉर्मली आपको जब एक आपको पेरेंट्स है वो मतलब वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे या आपका टीचर कभी बुरा नहीं चाहेगा आपका, तो उस टाइम ये सब हैबिट्स अवॉइड करनी है, ठीक है। नंबर 17, नेवर गिव एडवाइस अंटिल यू आर आस्क्ड। हमेशा एक अच्छी आदत बनानी चाहिए कि हमें दूसरे को एडवाइस नहीं करना चाहिए अननेसेसरली जब तक कि वो पूछे ना। इसका मतलब ये भी है कि हमें अननेसेसरली बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि हमारी टर्न ना आए या हमसे कोई पूछे ना, ठीक है, कि भैया आपका क्या ओपिनियन है। तो बोलते हैं ना, फालतू का ज्ञान नहीं देना चाहिए। जब तक कि आपको टर्न नहीं आती है या आपको कोई रीज़न से इंटरप्ट नहीं करना है, तब तक आप अच्छा है कि आप शांत रहिए या हम शांत रहें। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए, हर एक के लिए एप्लीकेबल है ये। नंबर 18, when meeting someone after a long time, unless they want to talk about it, don't ask them their age and salary। हम जब भी किसी से मिलते हैं बहुत लंबे समय की, यानी कि मान लीजिए हम आज मैं ऐसे स्टेज पे हूँ कि मेरे जो क्लासमेट्स थे वो सब प्रोफेशनल कॉलेजेस में हैं, बिजनेस में हैं, ठीक है, फैमिलीज़ में एंगेज हो चुके हैं मेरी तरह। तो हमें उनको हाय हेलो तो ठीक ठाक है, हमें उनको ये नहीं पूछना चाहिए भाई अब कौन सा जॉब करो, कितनी पेमेंट ले रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ टोटली नॉट गुड, ये एटिकेट्स में नहीं आता है। मतलब अगर हमें मैंने वही बोला कि पर्सनल चीज़ों के बारे में नहीं पूछना चाहिए हम, जब तक कि वो बंदा खुद आपको खुद ना बताए कि यार मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मेरा सैलरी 80,000 है, मेरा सैलरी 1 लाख है, ठीक है। वी शुड नॉट आस्क फॉर सच थिंग्स, या किसी को अननेसेसरली हाँ भाई कितनी एज है तुम्हारी, जो जिससे कोई मतलब कोई टॉपिक रिलेटेड है ही नहीं, कुछ अननेसेसरली हमें दिखाना है कि नहीं ये कितना बड़ा है और मैं कितना बड़ा हूँ या मैं कितना छोटा हूँ, इससे जो कोई ज़रूरत नहीं है आपको बोलना, ठीक है। नंबर 19, माइंड योर बिजनेस अनलेस एनीथिंग इन्वॉल्व्स यू डायरेक्टली, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। अगर आप कहीं पे है किसी क्लासरूम में, अगर आपका डाउट क्लियर हो चुका है और मेरा डाउट है बाकी रह चुका है, मैं अपने टीचर से डाउट पूछता हूँ, तो मुझे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए उनको। मेरा बिजनेस नहीं है, डाउट मेरा है, मैं पूछूंगा उनसे, मुझे क्लियर करना है अपना डाउट। आई एम सेम एज यू आर देयर, ठीक है, मेरा भी हक बनता है ना। तो हमें अननेसेसरली उससे दूर रहना है, ठीक है। आपका डाउट है, प्लीज़ जाके आप क्लियर करवा लीजिए। अगर आप क्लियर कर सकते हैं ओके, अगर आप क्लियर नहीं कर सकते हैं तो डोंट स्टॉप हिम टू डू दैट जॉब। इसी तरह बोलते हैं जो आपका काम दिया गया है आप वही कर लीजिए। अब अननेसेसरली इन्वॉल्व मत हो जाइए उस चीज़ में जो आपको बताया नहीं गया है, ठीक है। हमें दूर रहना है इन चीज़ों से। उससे क्या है, एक प्रोसेस जो हो चलता रहता है वो एकदम स्टेबल रहता है। अननेसेसरली हमें किसी की सुननी नहीं पड़ती है और बेइज्जती नहीं खानी पड़ती है। तो जो हमारा काम दिया गया होता है हमें वो करना है। अननेसेसरली हमें किसी की और की चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 20, रिमूव योर सनग्लासेस इफ़ यू आर टॉकिंग टू एनीवन इन द स्ट्रीट, इट इज़ द साइन ऑफ रेस्पेक्ट। मोरेसो आई कॉन्टैक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एज योर स्पीच। बोलते हैं
गॉगल पहनना बहुत अच्छी बात है, कोई गलत चीज़ नहीं, इट प्रोटेक्ट्स और आइज़, ठीक है, फ्रॉम इंफ्रारेड जो भी है। तो लेकिन जब भी हम किसी से बात करते हैं, इफ़ इट्स नॉट दैट सनशाइन, अगर सनशाइन इतना ज़्यादा नहीं है तो हमें नॉर्मली ग्लास को निकाल के हाथ में रखना चाहिए, या जो भी आपके ग्लास रैक होता है या ग्लास का वो एक पॉकेट आता है उस पर भी रख सकते हैं और बात करना हमें। और एक मैंने आपको इससे पहले ही बताया, एक कम्युनिकेशन स्किल्स में जब कैसे डेवलप करते हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट मैंने चीज़ बताई आपको कि आई कांटेक्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है। आई कांटेक्ट का होना स्पीच में बहुत ज़रूरी है, वरना दिस इज़ अ बैड एटिकेट ऑल्सो कि भाई नज़रें कहीं और है, बोल किसी के साथ रहा हूँ, देख कहीं और रहा हूँ, नो, वो एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है वो। अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ सो मच सनशाइन, या आपकी कोई हेल्थ इशू है कि जो आप गॉगल्स नहीं निकाल सकते हैं, वरना आपको गॉगल निकाल लेना चाहिए, या कोई सन ग्लास, कलर्ड सन ग्लास जो भी है आपको निकाल के रखिए, और जिससे बात करना है, आपको अप्रोच करना है, बात कर सकते हैं उसके साथ विदाउट द गॉगल्स। नंबर 21st, never talk about your riches in the midst of the poor. Similarly, don't talk about your children in the midst of the barren, or talk about your spouses around those who do not have. बहुत ही अच्छा टॉपिक, एक मेच्योर पॉइंट है। जब आप बड़े होते जाएंगे, धीरे 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 बड़े होते जाएंगे इंशाल्लाह, तो यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि हमें अपनी मतलब अगर मैं एक अमीर आदमी हूँ तो मुझे इसका डंका नहीं पीटना चाहिए अपने उन दोस्तों के साथ जो मेरी तरह, मेरे पापा की तरह रिच नहीं है, ठीक है। जो मान लीजिए मेरे पास घर में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो हमें इसका मतलब शो ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। शो ऑफ़ करना भी इज़ नॉट ए गुड एडिकेट। उससे पता चलता है आदमी की मतलब इसका माइंडसेट क्या है, मुझे नीचे दिखाना चाहता है, ठीक है। आप हो सकता है मेरे पापा ने ज़्यादा मेहनत की है, या आपके पापा ने ज़्यादा मेहनत की है, उसने उतना अर्न किया है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, ठीक है। तो हो सकता है हम भी आगे जाके उसी तरह हार्ड वर्क करें, हम भी उसी मकाम पे पहुंच जाएं जिससे हम, जैसे हमारे मतलब पेरेंट्स हैं, या जैसे हमारे कुछ जो हमारे लिए आइकन्स हैं। तो इसी तरह बोलते ना, जिस पेड़ के नीचे छाँव होती है वहाँ पे धूप भी आती है। तो आज ये वक्त किसी का होता नहीं है, तो अपनी अमीरी का या अपनी अच्छाइयों का ऐसा डंका नहीं पीटना चाहिए। दूसरे लोग बोलने चाहिए कि नहीं, ये अमीर होने, इतना अमीर होने के बावजूद भी ये कितना पोलाइट है, कितना डाउन टू अर्थ है, ठीक है। सिमिलरली जो एक शादीशुदा व्यक्ति होता है, हमारे मम्मी डैडी मतलब मॉम डैड जो हैं, हम मतलब जो भी हैं, तो उनको बोलते हैं कि बोलते हैं ना, दोस्ती हमेशा अपनी मतलब बराबरी से करनी चाहिए। बराबरी डज नॉट मीन्स पोर एंड रिच, बराबरी मीन्स अपनी एज के हिसाब से, मतलब इट्स अ गुड थिंग, डज नॉट मीन कि मेरा दोस्त छोटा है, नो, बुराई नहीं है, बट हमेशा से अच्छा रहता है सीमित में रहना। मतलब अगर मेरी मैं फ्रेंड मतलब फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ डिस्कस करना। अगर मेरा मैरिड फ्रेंड है तो अच्छा है कि मैं मैरिड के फ्रेंड के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूं जो मुझे डिस्कस करना चाहिए। एक अनमैरिड फ्रेंड को अपनी प्रॉब्लम्स बताना, उसने वो फेस नहीं किया होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जब मैं एक बैचलर था तो उस टाइम अगर मुझे बोला जाता कि भाई पहाड़ों पे चढ़ो, कहीं जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, मुझे इतने इश्यूज़ नहीं होते थे, ठीक है। बट जब मैं मैरिड हूँ, मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है, फैमिली की, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो मुझे अपनी कुछ लाइफ में चेंजेस लानी भी ज़रूरी होती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये चेंजेस नहीं लाता है वो सफ़र करता है। चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, वक्त के अनुसार प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। तो अगर मैं अब किसी अनमेरिड के साथ ये डिस्कस करूं कि नहीं मेरे घर में ऐसा इशू है, तो वो शायद नहीं समझ लेगा, या तो वो कुछ गलत डिसीजन ले लेगा क्योंकि उसने वो चीज़ें फेस नहीं की होती हैं, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो इन फर्दर विल डिस्कस मोर अबाउट दिस, बट आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि राइट 5 लाइन्स रिलेटेड टू योर एम्स, माई एम इन लाइफ। जस्ट 5 सेंटेंस लिखने में कोई इशू नहीं है। यू कैन राइट इट ऑन ए नोटबुक, यू कैन राइट इट ऑन ए लैपटॉप एंड सेंड मी अक्रॉस इन में व्हाट्सएप, या ग्रुप में भेज सकते हैं, ठीक है। तो उससे मैं भी मतलब एक इंट्रैक्शन हो जाएगी हमारे बीच में कि आप क्या बनना चाहते हैं। हो सकता है कि उसके रिलेटेड कुछ रिसोर्सेज हमारे पास हो, मेरे पास हो, या बाकी टीचर्स के पास हो, जो आपकी हेल्प करे उस गोल को अचीव करने में, ठीक है। सो प्लीज़ एंड प्लीज़, अब भी फिर अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज, यू स्टूडेंट्स, टू राइट 5 लाइन्स रिलेटेड टू योर एम्स। आपको एम क्या है, ठीक है।
That's all for today. Thank you very much and good day.